Myself is Manish Mitra, and today's session is on public speaking or speaking, and that plays a very crucial part in today's competitive world. How we speak, how we act, how I move around gives a profound impression on your presentation skills. Almost 70% of the job today is focused on speaking, if you have noticed so far. And many of the employers are searching for the true candidate who has a potential of speaking effectively or communicating effectively. That's without any doubt. And as you are well aware, there is a sudden shift of manufacturing from manufacturing to the service carriers, if you have noticed so far. Yes. And in this particular era of service carriers, almost all the employers are searching for their candidates who can speak effectively. Yes. And also, due to this, their employability skills also gets enhanced. I mean to say all of you. Whether you are a student or whether you are a working professional, it does not matter. Right? Yes. If I talk of the public speaking at large, it becomes something Hesitation. nahi, it becomes something fearful. You become fearful, you become anxious, you become nervous. Yes. Yes. If I ask anybody to come on the stage and they start presenting yourself, you will become very, very nervous. Yes. But this is the only aspect through which you can control your fear. Of course, controlling your anxiety. That's an important point. Got this point? अगर आज मैं बात करता हूँ पब्लिक स्पीकिंग की, चाहे आपकी मीटिंग्स हो ऑफिस में, चाहे आप कहीं भी इवन द कॉलेज लेवल में कहीं आप क्लास में बैठे हैं या कैफेटेरिया में हैं या कहीं भी हैं, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा चांस आपको ज़रूर मिलता है कि आपको कुछ बोलने का मौका मिले या आपको बोलना पड़े. So that means speaking is an important skill and this has to be learned and this can be learned. अगर मैं थोड़ा सा एक एल्बर्ट मेहरबीन थ्योरी के बारे में बात करूं, जो मैं पहले अपने सेशंस में वैसे बता चुका हूं. According to Albert Mehrabin, 7% is our spoken speech words. Then 38% is our voice, the tone of the voice, Yes. right? And rest 55% is body language. Yes. But in today's session, I will be focusing on the speech power, and that is vocal, the voice. My experience as a corporate trainer, as a trainer, I give a huge variation, a high variation in my pitch. Low, high, I am doing it. And I think that's the best criteria to impress any lobby. Yes. मैंने तो अपने आप में ये महसूस किया कि स्पीकिंग के अंदर अगर मैं वॉइस टोन को एक वेरिएशन देता हूं, जिसको मैं पिच ऑफ द वॉइस कहता हूं, तो उससे ऑडियंस या लिसनर्स इंप्रेस रहते हैं. फाइन. एक छोटी सा एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा एंड यू हैव टू आंसर इट. जस्ट थिंक इट वेरी कूलली. How, if I ask anybody to come here and present for herself, what you are going to say in the initial part? What are you going to say in the initial sentence? First. Second, how you sound yourself? A little bit nervous, anxiety. ये सोच के देखना थोड़ा सा. Just think it for these two questions. एक छोटी सी गेम. Slower pace, slower speed. उसमें आपकी स्पीकिंग इफेक्टिव रहेगी. यू विल हैव अ वेरी इफेक्टिव स्पीकिंग. क्योंकि होता क्या उसमें सीक्रेट क्या, आज वो भी मैं बता देता हूँ. द सीक्रेट इज दिस कि आपने जो सोच रखा है कुछ भी बोलने का, वट एवर यू हैव प्लान्ड, तो वो आपको याद रहेगा क्योंकि यू आर मूविंग स्लोअर. इफ आई speak in a faster way, I may forget many of the sentences or the words. Truly. True. और एक बात और, आज आपके सामने मैं हूं और मैं वर्ल्ड के सभी कम्युनिकेटर्स के बारे में बोल रहा हूं, ट्रेनर्स के बारे में बात कर रहा हूं. वैसे तो सर्वे ये कहता है कि 85% ऑफ द स्पीकर्स गेट नर्वस.
जो सर्वे है, but that is absolutely false. Rest 15% also nervous. Even it does not matter if you are an experienced trainer, if you are an experienced communicator or not, it does not matter. Everybody gets nervous. जिसको आप छोटे से शब्द में स्टेज फ्राइट कहते हो, स्टेज फियर, स्टेज फ्राइट ही कहते हैं, स्टेज फियर, स्टेज फ्राइट. और मैंने अभी इनिशियल पार्ट में क्या कहा, वो स्टेज फ्राइट आपकी अपनी ही एंजाइटी होती है, योर ओन एंजाइटी. वो फर्स्ट टाइम पे तो आना सबके पास आती है, लेकिन जब आप when you start speaking and thereafter you get rid of that anxiety part. और लेकिन करना वही चाहिए कि आप स्लो बोले हमेशा. मैं आपकी कोई भी मीटिंग एजेंडास, कोई भी सेमिनार्स, कहीं भी आप जॉब पे भी जाते हैं, तो यू स्टार्ट स्पीकिंग इन अ स्लोअर पेस. This is one of my picks, and with those 70 people, they were vice president levels, they were directors level, there was EDs level, they were sitting. I started my speech in a slower pace, and then I moved in a fast way, but not a very fast way, but my speech went very well. जो मैंने अपनी एक ऑब्जर्वेशन ली. हाँ, मैंने एक और आपको बता दिया कि मैं पिच वेरिएशन बहुत देता हूँ. I give a lot of pitch variation if you have noticed me, particularly the PD Yes, sir. students. Yes. I give a lot of pitch variation. And उनमें बाहर बोला गया कि जैसे कि हमने एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराए, फ्रॉम डायफ्रागम से आवाज आती है, आपकी आवाज आपकी इनर से आती है, फ्रॉम योर इनर हार्ट, फ्रॉम योर ट्रू पर्सनालिटी, ट्रू एस्पेक्ट. और वो ट्रू एस्पेक्ट जब जैसे ही आप बोलेंगे, आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. यू कैन इन्फ्लुएंस एनीबॉडी. आप अपनी बात को मनवा भी सकते हैं, मनवा भी सकते हैं. नहीं चाहिए दिल से. अब यहां पर दिमाग से नहीं, दिल से. एक्चुअली रिक्वायर्ड, दैट इज विदाउट एनी डाउट. Yes. अगर आपका आई कॉन्टैक्ट पुअर है, दैट मीन्स यू आर अ नर्वस स्पीकर. Yes. और इवन आज एक बात आपके लिए क्लियर होना चाहते हैं. ये मत सोचिए कि आज मेरा एक इंटरव्यू हुआ, मैं फेल हो गया और मैं सेकंड इंटरव्यू, इसको अपने दिमाग में हर्डल मत बनाओ. लेकिन इंटरव्यू के अंदर भी आपका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए. Yes. प्लीज लिसन केयरफुली. इफ यू विशेस टू क्लियर द इंटरव्यू, यू मस्ट हैव अ गुड आई कांटेक्ट. एवरीबडी हियर. और जिसको ये लगता है कि वो आंखें नहीं, मुझे तो बड़ी हेजिटेशन होती है, मैं आंखें नीचे कर लेता हूं, नहीं, आप फिर प्रैक्टिस करिए अपना आई कांटेक्ट फर्म बनाने के लिए. अगर इस वक्त मैं क्लास में जिसका आई कांटेक्ट परफेक्टली देख रहा हूं, दैट इज यू आर द विंडोज फॉर द सोल, टू द सोल. आप किसी की भी आइज से और उसकी वॉइस से एक्चुअली तो 100% जजमेंट ले सकते हैं कि ये पर्सनालिटी कैसी है. आराम से, कोई मुश्किल नहीं है. आप सभी के अंदर उतनी पावर्स होती हैं, एवरीवन, लेकिन उसका यूज करना नहीं आता, बस दैट्स इट. तो मेरा नाम प्रथम है, एंड आई हैव अ बिजनेस प्लान जो मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ. तो पहले आप लोग ये बताइए, आप लोगों ने ओयो के बारे में तो सुना होगा. अब आप मुझे एक एक करके बताइए कि ओयो के बारे में आपने क्या क्या सुना है, एक एक करके बताइए. कोई बोलना चाहेगा अभी? ओयो के पास पहले अपनी एक भी गाड़ी नहीं थी, ना अभी भी है. अच्छा, ठीक है. और कुछ? ओयो के पास अपना कोई ऑन रूम नहीं है या होटल नहीं है, फिर भी चल रहा है. ठीक है. तो इसी प्लान के साथ, लेकिन कुछ अलग अलग करके, मेरे पास एक बिजनेस प्लान है जिसका नाम है ग्रीन होटल. अब जैसे ओयो के पास अपना होटल नहीं है, वो दूसरे होटल्स के साथ पार्टनरशिप में आता है, फिर वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. वैसे ही हमारा भी प्लान है कि हम भी कुछ होटल्स के साथ पार्टनरशिप करेंगे और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. कि योर माइंड पावर इज वेरी शार्प. योर माइंड पावर इज वेरी शार्प. यस, इसका मतलब दूसरे शब्दों में मैं बोलूं, योर फोकस, योर कंसंट्रेशन इज वेरी हाई. इसका मतलब ये भी बैठता है कि आप जो भी कुछ करेंगे उसको हासिल कर लेंगे और उसको कामयाबी से आगे अपनी जिंदगी में लागू भी करेंगे और कामयाब भी होंगे. ये बात आज समझ लो. सबसे बड़ी चीज इस कोरोना टाइम में हमें ये देखिए, दो एस्पेक्ट्स आए हैं. टू एस्पेक्ट्स हैव कम ऑन द फोरफ्रंट, एंड दैट इज द फिजिकल हेल्थ एज वेल एज द मेंटल हेल्थ.
लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर आपके सारे ये लॉबी बैठी है, समझदार लॉबी बैठी है, आई जस्ट वांट टू हैव एन आंसर फ्रॉम योर साइड, व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट, इज अ मेंटल पावर और द फिजिकल पावर? सेम ही करेक्टली, फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा जरूरी है या मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा जरूरी है? आपका क्या ओपिनियन है? कम ऑन से इट। सर मेंटल पावर इसलिए जरूरी है, अगर हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी तो हम फिजिकली नहीं से फिट हो पाएंगे। ओके, उसका क्या कारण है? आप अपने ऊपर क्या ऐसा समझते हैं? सर अगर मेरा दिमाग अगर नहीं सही तरीके से काम कर रहा है तो सर मैं फिजिकल उस तरह से मैं हर जगह अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहा। एक बार इसके लिए तालियां मारो भाई, एक बार बजाने के लिए तालियां। मेंटल पावर फॉर श्योर। आप अपना कारण दें, वो दैट इज मेंटल पावर इसलिए बिकॉज अगर मैं कोई चीज करता हूँ तो अपना दिमाग लगा के ही करता हूँ। अब अगर दिमाग लगा के करूंगा तो फिजिकली भी मैं अपने आप को अच्छे से आई विल बी एबल टू प्रेजेंट माई सेल्फ करेक्टली। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ टास्क इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई हैव टू अप्लाई माई ब्रेन्स, so it means that I'm physically presenting myself in a way that includes my mental power. Like if I'm not able to do that task properly, it means that I'm not able to present myself physically properly. इसीलिए I would say mental power is more important. फैंटास्टिक, तालियां Physical power. तालियां बजानी नहीं चाहिए। रह पाएंगे। कैसे कैसे, ये बात कारण बताओ ना, यही तो जानना है। जो भी हम करते हैं ना तो दिमाग से ही हमें करना पड़ता है। ओके, एक बात कोई और? माइंड इज अ स्टीयरिंग व्हील। तो जो आधे लोग हॉस्पिटल में जाते हैं अपना हार्ट दिखाने, अपने किडनी दिखाने, तो वो एक्चुअली उनको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, तो ताकि वो अपना माइंड ठीक कर पाए, स्टीयरिंग व्हील ठीक कर पाए, तभी हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी सही रहेगी। फैंटास्टिक, आई जस्ट वांटेड टू नो, इन्होंने कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये अगर इन्होंने कहा कि अगर एक हमारा ड्राइविंग व्हील माइंड ही है, और अगर माइंड ही इम्बैलेंस हो गया तो सारा स्ट्रक्चर, आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स सारे डिस्ट्रैक्ट हो गई ना। या तो आप एंगर ज़्यादा खाओगे या कुछ। यस, क्योंकि हमारे सामने वैसे वर्ल्ड में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वन एग्जाम्पल इज निक व्यूजिक, आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, उन्होंने अपने मेंटल टफनेस के द्वारा अपने आप को एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी बनाया, और वो आज वर्ल्ड में उनका नाम है, एंड ही इज रिगार्डेड एज अ ग्रेट पर्सनालिटी। उनके हाथ नहीं हैं, उनके पैर भी नहीं हैं। Yes, sir. So mental strength, mental toughness. और अगर आप हिस्ट्री में भी देखेंगे, जो लोग मेंटली टफ होते हैं, they are more competitive. First point, they are more competitive. They have got more strength to cope with any difficulties in case of any hardships. I want to say a few words and a few sentences for you. If each one of us becomes an effective public speaker or an ethical public speaker, I think that will be a paradise on this earth, a walk in the heaven. That's it. Thank you. Don't lower your expectations to meet the performance. Always raise your performance to meet the expectations. What I mean to say, believe in yourself, that's all. And thanks to all of you for listening this session, lecture so much carefully. I love you all. Thanks to you. Thank you.